Hello students, hope you all are fine. So dear students, today we are going to start the next topic of chapter 3 integers, that is power of integers. So let me understand the concept of power through the figures. So here I have two figures, that is square and cube. This figure is square and this is cube. You all know about it very well. So what if I ask what is the formula to find the area of square? So you all remember this because you have done in class 4th that area of square is equal to side multiplied by side. Okay, area of square is side multiplied by side, or we also says it as side square. Okay, now about cube, what is the volume of cube? And volume of cube is side multiplied by side multiplied by side, or we can say that side cube. So dear student, if you see it carefully, there is a number written at right top of the word side. Here at the right top 2 is written, and here at the right top 3 is written. So what is the meaning of this 2 and 3? Okay, this 2 and 3 is the powers. Okay, so these, if a number written at the right top of the number, that is known as power. Okay, so the number which are written at the upper right corner of a number is known as power or exponent. We also says power as exponent. Okay, so I hope you understand what is power. Power क्या है? Power is a number that is written at the upper right corner. कोई भी आप नंबर देखिए, अगर किसी नंबर के अपर राइट कॉर्नर में आपको कोई नंबर दिखाई देता है तो दैट मीन्स दैट इज़ द पावर ऑफ द नंबर. वो पावर नंबर की पावर है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 centimeter, we can write it as 4 centimeter multiplied by 4 centimeter or 4 centimeter square. Okay, 4 centimeter square. Now what does power means? पावर का मीनिंग क्या है? तो पावर मीन्स अ नंबर multiplying itself as many time as it has power. ओके, मीन्स अगर किसी नंबर की कोई पावर 3 है तो उसका मीनिंग क्या है कि वो नंबर 3 टाइम्स अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो रहा है. Okay, so what does power means? Power or exponent indicates the number of times the base to be multiplied by itself. Here the word base is written. What is base? For example, if I write 7 square, it means here the power of 7 is 2. तो what 2 is the power? 2 क्या है? 2 तो पावर है. तो what is 7? 7 क्या है? 7 is base. Okay, तो पावर और एक्सपोनेंट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द बेस टू बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. तो मल्टीप्लाई क्या होगा? मल्टीप्लाई बेस होगा. और कितने टाइम्स होगा? एज मैनी टाइम्स इट हैज़ पावर. जितनी इसकी पावर है उतने टाइम. सो वी कैन एक्सप्रेस 7 raised to power 2 is equal to 7 multiplied by 7. Okay, if there is a number that is 3 raised to power 5, तो इट डजेंट मीन दैट 3 मल्टीप्लाई बाय 5. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना है. नो, इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई इट सेल्फ 5 टाइम्स. आपको 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. आप इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो नाउ वी हैव सेम नंबर्स विथ 2 different ways.
अब आप इसको 7 स्क्वायर रीड करते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ 3 रेज़ टू पावर 5 है तो आपको रीड कैसे करना है। पहले तो हमारे पास ये न्यू टर्म्स हैं, तो हम इसको रीड कैसे करेंगे वो सीखते हैं। इफ़ वी हैव पावर 5 ऑफ 3, ठीक है, तो आपको कैसे रीड करना है, नंबर रेज टू पावर। ओके, आपको क्या करना है, इसको पहले आप नंबर बोलेंगे फिर उसकी पावर बोलेंगे। जैसे 3 की पावर 5 है तो आप इसको कैसे रीड करेंगे, 3 रेज टू पावर 5, 3 रेज टू पावर 5। और यहाँ बस 7 रेज टू पावर 2, 7 की पावर 2 है तो इसको क्या बोलेंगे, 7 रेज टू पावर 2 और 7 टू द पावर 2। ओके, तो 2 वे से हम इसको रीड कर सकते हैं, 7 टू द पावर 2 और 7 रेज टू पावर 2, और इसको 3 रेज टू पावर 5 और 3 टू द पावर 5, ठीक है। तो आप किसी भी वे से इसको रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ और, यहाँ पर ए ले लिया, ए और उसकी पावर है 9, तो हाउ विल रीड इट हियर, ए इज़ द बेस, तो पहले आपको बेस को रीड करना है, ए रेज टू पावर 9। ओके, तो ए रेज टू पावर 9, पहले बेस को रीड करेंगे, आफ्टर दैट वी विल रीड द पावर, क्लियर। एंड पावर इज रिटन एट द राइट अपर राइट कॉर्नर ऑफ द नंबर। आपको नंबर के अपर राइट कॉर्नर मीन्स ऊपर लिखना है, और कहाँ लिखना है, राइट साइड में लिखना है। ओके, सो दिस इज द वे टू रीड द पावर नोटेशन टर्म्स। अब यहाँ पर हम इसको पावर नोटेशन भी बोलते हैं, या इन द फॉर्म ऑफ द पावर। अब जब हमारे पास 2 पावर फिक्स आती थी, पावर 2, हम उसको रीड करते थे एज स्क्वेयर। जैसे 7 रेज टू पावर 2 है तो उसको 7 स्क्वेयर रीड करते हैं, ठीक है। और अगर 9 रेज टू पावर 3 है तो उसको हम 9 क्यूब भी रीड करते हैं। तो हम दोनों वे से इसको रीड कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो से दैट 9 रेज टू पावर 3 और 9 क्यूब। ओके, सो 7 रेज टू पावर 2 मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय 7, एंड 3 रेज टू पावर 5 मीन्स 3 मल्टीप्लाई इट सेल्फ 5 टाइम्स। और इसी तरह अगर आपके पास यहाँ 1 रेज टू पावर 100 हो जाए, 1 रेज टू पावर 100, तो क्या आप इसको 1 को 100 टाइम्स लिखेंगे, तो इट इज़ टू मच टाइम कंज्यूमिंग। आप तो फिर तो आप लिखते रहेंगे। ये आपकी पावर नोटेशन फॉर्म है। अगर इसको आपको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है तो आप सिंपली 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और सो ऑन अप टू 100 पावर है 100 टाइम्स। ओके, अगर हमारे पास कोई ऐसी पावर है जो बहुत लार्ज में नंबर में आ गई है तो उसको हम सोन करके जितने टाइम्स है, 100 है तो 100 टाइम्स लिख देंगे, 50 है तो 50 टाइम्स लिख देंगे। तो क्योंकि अगर हम 100 टाइम 1 लिखने बैठेंगे, एक तो वो काउंट करना मुश्किल है और दूसरा वो लिखना भी मुश्किल है, वो बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। ओके, सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ द कंसेप्ट पावर। अब आज की वीडियो में हम इतना ही समझेंगे, तो बाकी का जो इसकी सॉल्यूशन ऑफ द पावर टर्म्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसी पर बेसिक के ऊपर ही आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 4 है नेक्स्ट वर्कशीट, दैट इज़ वर्कशीट 8, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट वी रिकैप्चुलेट द कंसेप्ट वी हैव स्टडीड इन आर टुडेज़ वीडियो। तो सबसे पहली बात क्या है कि पावर क्या है, पावर इज़ द नंबर दैट इज़ रिटन एट द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द नंबर, ठीक है, जो नंबर की राइट साइड पे लिखा हो, अपर राइट, ऊपर लिखा हो राइट साइड में, दैट इज़ पावर, ठीक है। और जब हमारे पास कोई पावर नोटेशन में टर्म आती है तो वहाँ पर हमारे पास 2 नंबर्स होते हैं, और जो हमारे पास जो टॉप में लिखा होता है दैट इज़ पावर, और जो नीचे लिखा हुआ है दैट इज़ बेस, ठीक है। तो पावर नोटेशन में हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं, 1 इज़ बेस एंड 1 इज़ पावर। तो यहाँ पर अब पावर नोटेशन को हम प्रोडक्ट फॉर्म में हम उसको लिख रहे हैं ना, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो दिस इज़ प्रोडक्ट फॉर्म, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, एंड 7 रेज टू पावर 2 इट इज़ पावर नोटेशन और पावर फॉर्म, पावर फॉर्म और पावर नोटेशन भी बोलते हैं। एंड पावर इज ऑल्सो नोन एज एक्सपोनेंट, पावर को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। ओके, now let we discuss some question of your worksheet 8. So here the question number 1 is
रीड अलाउड। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि हमें क्वेश्चंस को रीड करना आना चाहिए। जो पावर नोटेशन है इसको रीड कैसे करेंगे, तो मैंने आपको 2 वेज बताए हैं कि आप इसको कैसे रीड कर सकते हैं। यहाँ 5 बेस है और उसकी पावर क्या है 2। तो उसको रीड करने के लिए पहले आपको नंबर रीड करना है, बेस को रीड करना है। 5 to the power 2 और 5 raised to power 2। ओके, 5 raised to power 2, और अगर पावर 2 होती है तो हम उसको स्क्वायर में भी रीड करते हैं, 5 स्क्वायर। नाउ 9 raised to power 5, 9 raised to power 5, और 7 की पावर 3 है तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, 7 raised to power 3। सिमिलरली वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीजर्स, तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स की भी पावर हो सकती है। यहाँ -2 है, -2, अब आपने 2 नहीं बोलना है, -2 स्पीक करेंगे इसको, -2 raised to power 4, हेयर -10 raised to power 3 एंड हेयर -1 raised to power 18। तो ये सिंपली आपको रीडिंग के लिए ही बोला गया है। आप जितनी भी आपको पावर नोटेशन टर्म्स मिलती हैं उसको आप रीड करने की कोशिश करिए। और 2 और 3 ये आपके स्पेशल नंबर है। पावर 2 कैन बी speak as square and power 3 can be speak as cube। okay, if 5 raised to power 2 we can speak it as 5 square, clear, and 7 raised to power 3 is also speak as 7 cube। और ये आपने याद रखना है, 7 क्यूब, क्यूब मीन 3 पावर होती है, और स्क्वायर, स्क्वायर मीन्स 2 पावर होती है। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज second question, complete the table given below, the first one is done for you। तो आपको यहाँ पर बेस और कंपोनेंट के कॉलम दिए हुए हैं, बेस और एक्सपोनेंट के कॉलम्स दिए हैं। तो आपको पावर नोटेशन में जो टर्म्स दी हैं इसमें आपने बेस को सेपरेटली लिखना है और एक्सपोनेंट को अलग से लिखना है। अब यहाँ 9 raised to power 3 है, तो व्हाट इज 9, बेस क्या है, बेस इज 9 एंड पावर इज 3। हियर विच वन इज बेस, बेस क्या है, -3, नॉट सिंगल 3, -3 एंड पावर 4। सिमिलरली हेयर बेस इज -1 एंड पावर इज 6, बेस इज 20, पावर इज 2, बेस इज -10 एंड पावर इज 7। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। अगर मैं सिंपली 2 लिखती हूँ, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर 2 लिखती हूँ तो व्हाट इज बेस, बेस इज 2 एंड व्हाट इज पावर। अब यहाँ तो कोई पावर मेंशन ही नहीं है, तो आप क्या यहाँ 0 लिखेंगे, नो। अगर यहाँ पर कोई पावर नहीं है, इट मीन्स दैट नंबर इज रिपीटिंग 1 टाइम, वो एक ही टाइम लिखा जा रहा है, तो इट मीन्स उसकी पावर क्या है, 1 है। ओके, अब 0 नहीं लिखना है, 0 मीन्स यहाँ पर कोई नंबर है ही नहीं है। तो किसी भी नंबर की पावर जब कुछ भी नहीं है, there is no power, it means that number's power is 1, उसकी पावर 1 है। ओके, अब आपको पता ही है अगर -1 raised to power 6 है तो आप -1 को 6 टाइम्स लिखते हैं। 20 raised to power 2 है तो 20 को 2 टाइम्स लिखेंगे। अगर 2 की पावर कुछ भी नहीं है तो आप ये थोड़े ना 2 को लिखते ही नहीं हैं, ठीक है, आप उसको क्या लिखते हैं, 1 टाइम तो मेंशन है ना, तो 2 की पावर कुछ नहीं है, दैट इज़ 1। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट इन पावर नोटेशन। नोटेशन मीन्स पावर की फॉर्म में इसको लिखना है। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं दैट इज इन प्रोडक्ट फॉर्म, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन। आपने रिपीटेड एडिशन की है तो ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है। तो जब भी हमारे पास रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन होगी दैट कैन बी रिटन एज पावर नोटेशन। ओके, हियर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 इज बेस। हाउ मेनी टाइम्स 4 इज मल्टीप्लाइंग, 1 2 3, कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, तो पावर विल बी 3। और 3 को आपने अपर राइट साइड में लिखना है। ओके, अपर राइट साइड में इसको लिखेंगे। -2 4 टाइम्स हो रहा है तो बेस तो -2 ही रहेगा, जो भी नेगेटिव इंटीजर होगा उसको हम ब्रैकेट में लेंगे। -2, हाउ मैनी टाइम इट इज़ रिपीटिंग, 4 टाइम्स, रेज टू पावर 4। सिमिलरली 5 × 5 × 5 × 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो बेस तो 5 ही रहेगा, बेस भी 5 ही है,
और पावर भी 1 2 3 4 5। तो जो पॉजिटिव नंबर है उसको हम ब्रैकेट में नहीं लेते हैं, जो नेगेटिव नंबर है उसको हम ब्रैकेट में लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए -10 इंटू -10 इंटू -10 इंटू सोन अप टू 8 टाइम्स, मीन्स ये 8 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसकी पावर नोटेशन क्या होगी, -10 रेज टू पावर 8। ओके, हेयर -11 इंटू -11 इंटू -11, ये 3 टाइम्स ही रिपीट हो रहा है, तो -11 रेज टू पावर 3। here -1 इंटू -1 इंटू -1 सो ऑन अप टू 33 टाइम्स, तो -1 जो है वो 33 टाइम्स हो रहा है रिपीट, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, -1 रेज टू पावर 33। जितने टाइम्स वो रिपीट होगा वही उसकी पावर होगी। ओके, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये एक्सपेंडेड फॉर्म भी है और ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन भी है, रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म और प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। अब आपको किसी भी वे से पूछा जा सकता है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म, या राइट द फॉलोइंग इन रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, और राइट द फॉलोइंग इन प्रोडक्ट फॉर्म। तो आप वे जो टर्म्स हैं वो डिफरेंट यूज़ की हैं, पर वे एक ही रहेगा। 2 रेज टू पावर 5 को अगर आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंड करके लिखना है, तो मीन्स उसको आपने उसकी प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। 2 रेज टू पावर 5 इज रिटन एज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, 2 रेज टू पावर 5 मीन्स 2 मल्टीप्लाइंग इट सेल्फ 5 टाइम्स। इसी तरह -7 रेज टू पावर 3 है, तो -7 रेज टू पावर 3 है, तो आपको -7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। -7 को आप ब्रैकेट नेगेटिव है तो आप उसको ब्रैकेट में लिख के चलिए, इंटू -7 इंटू -7। मैं आपको यही करके बता रही हूँ कि आप वर्कशीट जब सॉल्व करें तो आपको ये याद रहिए कि हमने क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर 3 रेज टू पावर 4 है, तो आप 3 रेज टू पावर 4 को कैसे लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम्स लिखना है आपने 3 को। -12 रेज टू पावर 2 इट इज़ रिटन एज -12 मल्टीप्लाई बाय -12, ठीक है। अब यहाँ तो हमारे पास स्मॉल नंबर थे, हमने सबको प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। मैं एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ। यहाँ है -7 रेज टू पावर 50। अब -7 को हम 50 टाइम्स तो नहीं लिखेंगे ना, तो क्या वे होगा इसको, -7 इंटू -7 आप 2 टाइम्स लिखिए और सिंपली मल्टीप्लाई सोन अप टू 50 है पावर इसकी, तो इसको 50 टाइम्स। तो जब पावर बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, लार्ज नंबर आ रहा है, तो आप सोन करके उसको एज मैनी टाइम्स लिख दीजिए जितनी उसकी पावर्स है। ओके, तो आज का हमारा कंसेप्ट इतना ही है। आप थॉरोली इसको देखिए क्योंकि यहाँ पर आपका बेसिक है, और जो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।